All right, ladies and gentlemen, welcome to another episode of The Fact Flash. This is Krishna, and on this beautiful evening, I have been joined by the members of CREDAI. Now, it is that time of the year where people usually have their hopes super high. Nirmala Sitharaman, the Finance Minister of India, has announced the budget for the annual budget for the year 22-23, which has brought in hopes for many, and especially when we talk about the real estate industry, I'm sure. Now, this year, the budget, when we talk about real estate in particular, it has been focusing a lot on affordable housing. When we talk about it, it has been focusing on developing the mega cities, which calls for a lot of infrastructural development, and henceforth we've been joined by the CREDAI members. Before they speak, I'll introduce you to each one of them. We have been joined by the Gujarat State President of CREDAI, Mr. Hemant Patel. Thank you so much, sir, for being here with us. We've been joined by the Vice President of Gujarat CREDAI, Mr. Pritesh Shah. Thank you so much, sir, for being here with us. We've been joined by the President of CREDAI Vadodara, Mr. Mayank Patel. Thank you so much, sir, for being here with us. We've been joined by the Chairman of Vadodara CREDAI. Thank you so much, sir, for being here with us. And we've also been joined by Dhirubai, who is the Vice President. Thank you so much, sir, for being here with us. Now, before we get deeper into the conversations, like I said, इस साल का बजट इज फोकसिंग अ लॉट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन जनरल. अगर बात करें तो आर योर होप्स हाई और वर योर होप्स हाई बिफोर द बजट केम? 2014 से जब से मोदी जी की गवर्नमेंट यहाँ पे आई है, तब से उनका पहला ये उनका एम था कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जितना हो सके तेज़ी से बढ़े. तो उनका पहला ये फोकस था. दूसरा उनका फोकस था एफोर्डेबल हाउसिंग पे. तो दोनों फोकस के हिसाब से 2014 से सब प्लानिंग के हिसाब से आज तक उन्होंने काम किया है. और मुझे लगता है कि हम एज अ डेवलपर, ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होता है तो पूरा इकोनॉमी रिवाइव हो सकता है. और आगे जाके ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो इसका फायदा आगे जाके सभी लोगों को मिल सकता है. Right. Now, when we talk about real estate, it is said that after the agricultural industry, it is the industry which provides the maximum employment in the country. Real estate will be an industry which will be giving in some 1 trillion, that is, say, some 8% to the GDP of India, which is a great thing, and that is the reason all of these gentlemen are sitting right in front of me. Sir, इस बार इन द बजट अफोर्डेबल हाउसिंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है. सम 80 crore न्यू हाउसेस विल बी बिल्ट. डू यू हैव अ टेक ऑन दैट? लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द अफोर्डेबल वंस एंड देन वील गो टू द 3-tier एंड 2-tier सिटीज. अफोर्डेबल हाउसिंग का जो मोदी जी का सपना है कि हर एक को घर का घर मिले, वो उनका एक सपना रहा है. अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उन्होंने काफ़ी सारी योजनाएं रखी है. ये बार भी बजट में आपने जैसे बताया कि 80 lakhs पर जितने घर बनाएंगे. हमारा ये बजट से एक अपेक्षा थी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए. एक सब्सिडी थी 2.63 lakhs की. उसका ये मार्च 2020 के बाद उसका एक्सटेंशन होना चाहिए था, वो एक नहीं हुआ. तो हमारी एक अपेक्षा है रियल एस्टेट के हिसाब से कि हम उसका भी एक होना चाहिए कि जो सब्सिडी जो है वो एक्सटेंड करनी चाहिए. दूसरी चीज़ ऐसी है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का 45 lakhs रुपीज़ का कैप है, तो उसको भी बढ़ाना चाहिए. क्योंकि अभी जो आफ्टर कोरोना के बाद सबकी डिमांड बढ़ी है. सबको छोटे घर से बड़े घर चाहिए, एक कमरा ज़्यादा चाहिए. तो उसमें भी एक ऐसा है कि 90 स्क्वायर मीटर के कैप है और 45 lakhs. तो 90 स्क्वायर मीटर की जो कैप है वो भी बढ़ा के 125 स्क्वायर फीट मिनिमम होनी चाहिए. और दूसरी चीज़ ऐसी है कि जो 45 lakhs है उसकी भी डिमांड बढ़ानी चाहिए. एक हमारी अपेक्षा है रियल एस्टेट की, और गवर्नमेंट से हम गुंजाइश करते हैं इस पर भी कुछ सोचे. भले बजट में नहीं लिया है तो उसके बाद भी कुछ उस पर फोकस करे, ऐसा हमारी आशा है. Right. Mayank sir, for the last 2 years during the COVID pandemic, the real estate saw a huge stoop in the sales. There were sites that were shut down for 2 years, nothing was operational, and now when the budget came in, did you have high hopes? Yeah, actually we have high hope from the government, and if you are looking to this budget, this is totally oriented on infrastructure, core infrastructure पर. अगर हम बात करें कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वर्ल्ड के,
तो वहाँ जहाँ जितने डेवलप कंट्री नहीं, डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे तभी इकोनॉमी रिवाइव होती है जब गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग आता है। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग आने से होता क्या है कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसके साथ में इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, और दूसरा उसके साथ ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये सब चीज़ को रिलेटेड है, पूरा डेवलपमेंट इसके साथ चलता है। Right. और जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद में जीडीपी का ऑलमोस्ट 8% हिस्सा रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। तो मेरे हिसाब से 2014 से जो देख रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन इस बार उसको हम बोल सकते हैं कि इसको बहुत ही बारीकी से फोकस करके इसको स्कीम को लागू किया है। और जो PMAY स्कीम जो थी, प्रधानमंत्री आवास योजना की, कहीं ना कहीं इसको मद्दे रख के ये बजट को बनाया है, और ये बजट को देखते हुए एक अलग ही वाइब्रेशन रियल एस्टेट के लिए दिख रहा है। Right. My next question is to both of you, all of you. This has been said that ये जो budget है, the government has said that it's for the next 5 years. Okay. Now, do you think it's a headline without a deadline? That there are going to be some number of houses, and there is going to be big infrastructure, 2-tier mega cities that will be converted to 3-tier. So, is it a headline without a deadline? Yeah, I think it is a headline. No deadline. ये डेडलाइन नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी प्रोसेस है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। रातों रात कोई एक्सप्रेस हाईवे या कुछ भी चीज़ बन नहीं सकती है। तो ये जो थोड़ा प्रोसेस है वो लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है। और साथ में इस बजट में एक टाउन प्लानिंग स्कीम्स का भी लिया गया है। तो अभी तक क्या था कि सिर्फ हाईवेज डेवलप होते थे, लेकिन जो अभी इनका फोकस टाउन प्लानिंग स्कीम में हुआ है, जो अर्बन सिटीज़ में है, वो 2-टायर सिटी हो, 3-टायर सिटी हो या कोई भी सिटीज़ हो, तो उसमें भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे जाके इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आने वाला है जी। तो मेरे हिसाब से ये डेडलाइन नहीं है, ये हाई होप है, और ये मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। राइट। दूसरा ये फाइनेंस मिनिस्टर से जो एक्सपेक्टेशन था जी रियल एस्टेट को कि भी 2.67 एक्सटेंशन हो जाए, 2.67 लाख का जो सब्सिडी है एफोर्डेबल में, वो एक्सटेंशन होना चाहिए था। दूसरा उसका स्क्वायर मीटर एरिया जो 90 स्क्वायर मीटर था वो भी बढ़ना चाहिए था, ये भी अपेक्षा रियल एस्टेट की थी। तीसरा अच्छी बात ये है कि जो टाउन प्लानिंग स्कीम्स का जो उन्होंने उधर उसमें बजट प्रोविज़न किया है, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होने से जो बड़े सिटीज़ है, 2-टायर 3-टायर सिटीज़ है, उसको भी बेनिफिट अभी मिलना चाहिए। कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो भी देखना पड़ेगा, कितना फास्ट होता है वो भी देखना पड़ेगा। Right, sir. So, do you have a take on having a headline, government having a headline of building so many houses and so many infrastructure without giving us a deadline that this will be done like by 5 years or by 2 years or by 3 years? Should we expect that? ये बजट में कुछ चीज़ें जो हम लोगों को एक्सपेक्टेशंस था, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली जो देख रहे हैं तो इसमें कुछ मिसिंग चीज़ें जो है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए था या अभी भी करना चाहिए, वो एक ही चीज़ है कि पहले इनकम टैक्स की एक 80IB का स्कीम जो था अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बहुत फिट वो स्कीम था। वो स्कीम के तहत क्या होता था ना कि वो जो अफोर्डेबल हाउसिंग बन रहा था, वो अफोर्डेबल हाउसिंग का उसका लिमिट 5 साल का जो है 2022 में ख़त्म हो रहा है, मार्च 2022 में। और पिछले 2 साल से जो कोविड का सिचुएशन है, वो सिचुएशन में वो टाइम को एक्सटेंड करना चाहिए था, एक्सटेंशन देना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ एज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड इंडिया नीड अफोर्डेबल हाउसिंग। तो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो सब्सिडी इंटरेस्ट सब्सिडी है 2.67 लाख की जो सब्सिडी अफोर्डेबल हाउसिंग के दे रहे थे, उसको कहीं बढ़ाने की अपेक्षा थी, उसकी जगह पे ये सब्सिडी बंद हो रही दिख रही है। दूसरा जो 80IB में जो स्कीम इनकम टैक्स एग्जम्पशन था, वो
बंद हो रहा है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। थर्ड पॉइंट ऐसा है कि जो जीएसटी इनपुट क्रेडिट की भी हम लोगों को अपेक्षा थी कि जीएसटी इनपुट क्रेडिट जो है कमर्शियल शॉप्स वगैरह सब में मिलता, तो एंड बायर के ऊपर जो इसका वो कॉस्ट ही तो हो जाता था जीएसटी का, तो वो कॉस्ट भी बच जाता। तो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए थोड़ा गवर्नमेंट को ये फोकस करना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना। Anything else could have been better, according to you? अभी भी गुंजाइश है कि ये सब होने के बावजूद भी गवर्नमेंट अगर ये पॉलिसी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अलग से कोई पॉलिसी डिक्लेयर करता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, और इंफ्रास्ट्रक्चर का खास करके जो टाउन प्लानिंग के लिए एक गवर्नमेंट का बजट है उसमें स्पेंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर का, लोकल अथॉरिटीज़ ये चीज़ को वाइब्रेंटली लेकर अगर जो पेरिफेरियल एरियाज़ है अर्बन्स के, उसको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और टाउन प्लानिंग स्कीम के अंदर वाइब्रेंटली काम करे और डेवलप करे तो उसका रिजल्ट दिखेगा। Right. So do you think something else could have been better? कुछ और बेहतर हो सकता था when it comes to real estate in particular? ये बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी डिक्लेयर की है उससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगा, बहुत सारा बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, और हमारे रियल एस्टेट में भी बहुत अच्छा स्कोप है इन्वेस्टमेंट की वजह से, एम्प्लॉयमेंट भी हमारा बढ़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट जो प्राइस एंड यूज़र्स जो सोचते थे कि प्राइस कम होगी, वो शायद ऐसा लगता है कि वो नहीं हो पाएगी। Right. Do all of you, as CREDAI or as developers, have something to say to the government? ये बजट में अभी आपने देखा होगा कि एक्साइज ड्यूटी स्टील के उसको स्टील जी डाउन किया है। तो हमारा एज ए क्रेडाई रियल एस्टेट की तरफ से ऐसा है कि अभी जो स्टील के भाव है वो आसमान को छू रहे हैं, जिसका अल्टीमेटली एंड यूजर पे ही जाता है कि मकान महंगे होंगे, तो अल्टीमेटली कस्टमर को ही महंगा पड़ेगा। तो अभी भी जो एक्साइज ड्यूटी कम किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन स्टील कंपनी या कार्टेल करके वही रेट मेंटेन कर दिए, तो उसमें भी कुछ अंकुश लाए। गवर्नमेंट तो बेनिफिट देना चाहती है, लेकिन कंपनियां कार्टेल रख के वही रेट वापस सेम टू सेम कर दी, भले एक्साइज ड्यूटी कम होती है। तो हमारा ये कहना है कि रियल एस्टेट के हिसाब से एंड यूजर को सस्ता मकान मिले, तो ये ऐसा नहीं हो, उस पर थोड़ा ध्यान दे। राइट, थोड़ा इसको मैं वाइडर करके बताऊं। जैसे हम डेवलपर्स है, वो डेवलपर्स के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए एक रेरा अथॉरिटी नए एक्ट से लागू किया गया है। तो उसमें ऐसा होता है कि रेरा एक्ट हमारा पूरा कस्टमर के साथ का पूरा ट्रांजैक्शन है वो निगरानी के रहता है। तो हम लोग एकदम ट्रांसपेरेंटली कस्टमर के साथ काम करते हैं। अभी हम एज अ डेवलपर्स जब हम ट्रांसपेरेंटली हम बायर्स को मकान दे रहे हैं, तो उसी समय हमारा जो परचेज़ है वो परचेज़ भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो भी एक श्योरिटी होनी चाहिए। अभी लास्ट 6-7 महीने के बाद में इतना 35% तक का सभी मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है। तो हमने बहुत सारे स्टेट और सेंट्रल को बोला है कि आप इसमें इन्वॉल्व होइए। जैसे हम डेवलपर्स को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है रेरा की थकी, ऐसे ही सेम ये जो भी सीमेंट्स कंपनी है, स्टील्स कंपनी है या और कंपनियां हैं, इनको भी उनके ऊपर भी कुछ कंट्रोल लाना चाहिए। तो हमारी ये बहुत स्ट्रांगली मांग है कि ये सब जो इतने सारे रेट जो बढ़ जाते हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोलिंग बॉडी गवर्नमेंट लाए। Noted. All right. So let's conclude. All right, ladies and gentlemen. So these were the members of CREDAI with me this evening, and we had a conversation on how the annual budget of 2022-2023, which is being said that it's going to be a budget for the next 5 years. This was a healthy discussion, and we found out so many things that anyone was planning to invest or get to know more insights about the real estate should know. So with this and a lot more that you need to know, make sure that you keep watching The Fact Flash. Thank you.